خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ کیا آپ سب خوش ہیں؟ آئیے زوردار تالیاں بجائیں خدا کی اس بڑی حضوری کے لیے۔ زوردار تالیوں سے ہم خدا کے کلام کو آج شام ذکر کریں گے اور آج ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم آج شام بڑی برکت کو حاصل کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو کھولیے، جن کے پاس خدا کا زندہ اور مقدس کلام ہے۔ آج جس ٹاپک پر ہم سیکھیں گے، ہمارا ٹاپک ہے میں کہاں دعا کروں، میں کہاں دعا کروں۔ تو ہم آج دعا پر سیکھیں گے کہ ہم کہاں دعا کر سکتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر کھولیے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے بائبل مقدس کو کھولیں۔ پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم کلام کو پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے۔ خدا کے کلام کو پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہے آمین۔ کلام خدا میں جس آیت کو ہم نے پڑھا ہے، اگر اس کو بغور توجہ سے اس کو پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، پس میں چاہتا ہوں۔ مقدس تموتھیوس کیا کہتا ہے؟ بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کرے؟ دعا کرے۔ دعا کہاں کریں جی؟ ہر جگہ۔ کہاں پر دعا کریں؟ ہر جگہ۔ اور کون دعا کریں؟ صرف یہ بات مردوں کے لیے نہیں ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے، ہم نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی قبیلہ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت، بلکہ ہم سب مسیح میں کیا ہیں؟ ایک ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پھر سے لکھا ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے کیا کریں؟ دعا کریں۔ ہاتھ اٹھا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کریں گی؟ دعا کریں۔ آمین۔ یہ اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس کوئی دعا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ جا کر دعا کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس دعا کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعا نہ کریں۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس میں بہت سی ایسی جگہوں کو دعائیا مذبح بنا دیا گیا یا دعا کی جگہ بنا دیا گیا، جن کو آج ہم سیکھیں گے۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی مخصوص جگہ پر دعا کریں، ہم کہیں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا۔ کہاں پر جا؟ اور لکھا ہے، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا؟ بدلا دے گا۔ اس آیت کے اندر ہمیں یہ ہدایت اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تو دعا کرے تو کہاں جا کر؟ کوٹھری کے اندر، اپنی کوٹھری کے اندر جا کر کیا کر؟ دروازہ بند کر کے دعا کر۔ آمین۔ تو پہلی بات، ہم کہاں دعا کریں؟ کوٹھری کے اندر، اپنی کوٹھری یعنی اپنے گھر کے اندر ہم کیا کریں؟ دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ پھر دوسری بات، اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو ایمان کی کتاب 16ویں باب کی 25ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب پالوس، سامنے دیکھیں، پالوس اور سلاس کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ ہاللیلویا۔ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے اور خدا کی
हमद के गीत गा रहे थे और कैदी लिखा है सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उस दम लिखा है उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। तो यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल कहां पर दुआ कर रहे हैं? पौलुस और सिलास कहां पर दुआ कर रहे हैं? कैद खाना के अंदर। कैद खाना कोई अच्छी जगह नहीं है, वहां पर गंदगी है, बदबू है, निजासत है और जगह भी साफ सुथरी नहीं है। वहां पर हो सकता है जहां पर कैदी होते हैं वहां पे गंदे वॉशरूम, ना पानी की वहां पर सहूलत, ना साफ कपड़े पहने, कई महीने लोग बेचारे बगैर गंदे कपड़ों में गुजारते हैं और गंदी जगहों पर रहते हैं। लेकिन वो वहां पर क्या कर रहे थे? कैद खाना में क्या कर रहे थे? लिखा है कब दुआ कर रहे थे? आधी रात के करीब। और साथ साथ दुआ के क्या गा रहे हैं? खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं। और उसके बाद जो मोजज़े हुए हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनकी बेड़ियां क्या हो गई? हाँ जी, उनकी बेड़ियां क्या हो गई? जोर से बोलो जी, उनकी बेड़ियां क्या हो गई? कैद खाने की नींव क्या हो गई? हिल गई। दरवाजे जो कैद की जेल के दरवाजे थे वो दरवाजे क्या हो गए? खुल गए। और जिन बेड़ियों में वो जकड़े हुए थे वो बेड़ियां भी क्या हो गई थी? खुल गई। और कितने लोगों की बेड़ियां? लिखा है सब लोगों की बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। तो दुआ हमें क्या करती है? आजाद करती है। दुआ हमें क्या करती है? दुआ जकड़े हुओं को क्या करती है? आजाद करती है। इन्होंने कहां पर दुआ की है? कोठरी के कैद खाना के अंदर दुआ की है। कहां पर दुआ की है? कैद खाना के अंदर, जेल के अंदर इन्होंने क्या की है? दुआ की है। उसके बाद अगर हम ईमाल की किताब 10वें बाब की 9वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा। अब यहां पर पतरस कहां पर दुआ करने के लिए चढ़ा? कोठे है बहनों। अक्सर बहनों सिर्फ कपड़े पोलाली कोठे से चढ़ दिए है जी, या कुछ तो कुछ कर या कुछ जुमा के तो यहाँ पर खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस क्या करने के लिए कोठे पे चढ़ा है? क्या करने के लिए कोठे पर चढ़ा है? दुआ करने के लिए। हालेलुया। और जब वो कोठे पर दुआ कर रहा है उसके बाद दुआ के बाद कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा ने ऐसे मुकाशफे उस पर खोले, ऐसे भेद उस पर खोले। खुदा ने बताया कि गैर कौमें भी निजात के अंदर शामिल है, वो भी निजात पा सकती हैं। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाइए। तो पतरस ने दूसरे नंबर पर हमने सीखा कहां पर दुआ की है? कोठे थे। कितने दुआ की थी? सारे बोलो जी, कितने? कोठे थे। हालेलुया। अब अगली बात, लूका की अंजील, मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर 16 पढ़े तो लिखा है मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। कितने जाके? है जी। हो सकता है यीशु के घर में कुछ लोग ज्यादा हो या घर में उस तरह से उसको जगह दुआ के लिए ठीक नहीं मिली तो उसने मुनासिब समझा कि मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां पे मुझे डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो वो दुआ के लिए कहां पर चला गया? यीशु कितने चला गया? जंगलों में। हालेलुया। दुआ के लिए कहां चला गया? जंगलों में। हालेलुया। फिर अगली बात लूका की अंजील 6 बाब की 12वीं आयत पढ़े तो लिखा है और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। कहां पर दुआ करने को गया? सारे बोलो जी मेरी तरफ देखे। कहां पर? पहाड़ पर। हालेलुया। और दुआ में कितनी? पैंचमाना कितनी देर लाई?
सारी रात लाई थी। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है वो पहाड़ भी दुआ की जगह है। आमीन। अगर हम मुकद्दस लूका की इंजील को पढ़ें तो हमें और एक वाक्य का जिक्र मिलता है। लिखा है और सुबह दिन निकलते ही बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। कहां पर दुआ की? वीरान जगह पर। कितने जाके दुआ की थी? कई वीरान जगह तो लोग ही डर दे कहते ने जगह तो बड़ा काम भारा है बड़ी भारी जगह है जी, इथों नहीं लगना, इतने खौफ हो गया। वो कहां पर जाकर दुआ कर रहा है? वीरान जगह पर। कहां पर दुआ कर रहा है बच्चों? मुकद्दस लूका की इंजील 20वें बाब की अगर यूना का सहीफा उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत पढ़े तो यहां पर यूना ने मछली के पेट में दुआ की है। कहां पर दुआ की है? जी, मछली के पेट में। मछली के लिखा है यूना दूसरा बाब उसकी पहली है। लिखा तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की। हालेलुया। यूना ने कितने दुआ की थी? मछली दे। तो मछली के पेट में दुआ करना कोई अच्छी जगह है? मछली जिथे मछली है ना कभी उथों जी लगी कहते हैं मछली की बड़ी स्मेल आ रही, छिंदर आ रही है, इन्हें मच्छी तो होती है हाथ तो स्मेल आ रही है। तो मछली के पेट के अंदर कितनी स्मेल होगी, कितनी गंदगी होगी, है? तो यूना ने वहां पर भी दुआ की है और यूना ने हो सकता है उसका वहां पर दम उठ रहा हो, सांस का आना मुश्किल उसके लिए हो, उससे बड़ी परेशानी थी इस बात की। लिखा है यूना कहता है तब मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से क्या की? मुसीबत में खुदावन से क्या की? हाँ, तो खुदा ने उसकी मुसीबत को दूर करने के लिए उसकी दुआ को मछली के पेट में सुना और बाद में मछली को हुक्म दिया और मछली ने जाकर उसे बिल्कुल समुद्र के किनारे पर जाकर उसे उगल दिया। हालेलुया। जब हम दुआ के लिए अपना मुंह खोलेंगे तो फिर खुदा हमारे लिए अपनी बरकतों के दरवाजों को खोल देगा, आसमान की दरवाजों को खोल देगा। आमीन। जब हम अपने मुंह को खोलेंगे तो खुदा, जब यूना ने अपने मुंह को खोला तो खुदा ने ऑटोमेटिकली मछली को हुक्म दिया और मछली ने उसे अपना मुंह खोलकर उसे क्या कर दिया? उगल दिया। हालेलुया। अगर हम मुकद्दस लूका तबीब की इंजील पढ़ें तो उसके 23वें बाब की 34वीं आयत पढ़ें तो यीशु ने सलीब पर दुआ की है। कहां पर दुआ की है? जोर से बोलो, यीशु ने कहां पर दुआ की है? सलीब पर। लिखा है यीशु ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो सलीब पर क्या कर रहा है? हाथों और पांव में कील है, सर पर कांटों का ताज है, पूरा बदन छलनी है और नीला है और बुखार और तप से वो तड़प रहा था, लेकिन उस वक्त भी उसने क्या की है? दुआ की है। और क्या कहा है? बाप इनको क्या कर? सलीब पर उसने क्या की है? दुआ की है। हालेलुया। मौत से लड़ते हुए उसने क्या किया है? फिर अगर हम लूका की इंजील 18वें बाब की 10वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर दो शख्स है जो हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे हैं। एक फरीसी है और दूसरा महसूल लेने वाला है। आमीन। और अगर हम पुराने अहदनामा में अब्राहम, इसहाक और याकूब की जिंदगी पर गौर करें, ये बुजुर्ग खुदा के खादिम हैं। ये वो खुदा के खादिम हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में बरकत के लिए फाइट की है। हालेलुया। आप देखें अब्राहम के जमाने में कोई हैकल नहीं थी, कोई खैमा इज्तिमा नहीं था। इसहाक याकूब के वक्त में कोई खैमा इज्तिमा नहीं था। ये खैमा बदोशी की जिंदगी गुजारते थे, तंबुओं के अंदर जो है ये आरजी घरों के अंदर रहते थे और जिंदगी गुजारते थे। जहां इनका दिल चाहता ये मैदानों के अंदर
मजबे बना लेते और खुदावन के हजूर झुक जाते और दुआ करते, और जिंदा खुदा वहीं पर इनको क्या करता, बरकत से मालो माल कर देता। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मत्ती की इंजील 18वें बाब की 20 आयत पढ़े तो लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। यीशु क्या कह रहा है? जहां, कई लोग कहते नहीं जहां एक या दो, भोले बेचारे बाइबल ना पढ़ना ले, लकीर दे फकीर सुनी सुनाई गल्ला दुआ करना ले। अरे हमने बाइबल के लफ्जों को बिगाड़ना नहीं है। लिखा है जहां 2 या 3, 1 या 2 कहीं भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? जहां 2 या 3 यीशु ने कहा है मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में क्या हूं, मौजूद हूं। आप जहां भी दुआ करें, आप अपनी कोठरी में दुआ करें, आप अपने घर में दुआ करें, आप कैद खाना में दुआ करें, मछली के पेट में दुआ करें, मैदानों में दुआ करें, जेल खानों में दुआ करें, आप हैकल में दुआ करें, आप कोठे पर दुआ करें, आप किसी भी जगह दुआ करें, खा पहाड़ क्यों ना हो, खा वीरान जगह क्यों ना हो, जहां जहां आप दुआ करेंगे जिंदा खुदा की मौजूदगी और उसकी हजूरी आपके साथ होगी। हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दीजिए जिंदा खुदा के लिए। इसलिए दुनिया दे काम दूजे नंबर दे, दुआ को पहला दर्जा दे। दुआ को कौन सा दर्जा दे? पहला दर्जा दे। आमीन। अगर हम इबादत को, दुआ को, चर्च को पहला दर्जा नहीं देते, खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, तो ये याद रखिए हम अपनी जिंदगियों में जिन कामों में हाथ लगाएंगे हम नुकसान उठाएंगे। लेकिन अगर हम खुदा को पहला दर्जा देते हैं, खुदा को पहला वक्त देते हैं, तो जिस काम पर हम हाथ लगाएंगे, जहां जहां हम जाएंगे, खुदा की फेवर, खुदा की मदद, खुदा की ग्रेस हम पर आएगी और हम खुदावंद के नाम और जलाल में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ दुआ करें, हम किसी भी जगह दुआ कर सकते हैं, हम चलते फिरते दुआ कर सकते हैं, उठते बैठते दुआ कर सकते हैं, हम पहाड़ पर दुआ कर सकते हैं, छत में दुआ कर सकते हैं, बंद कमरे में दुआ कर सकते हैं। खुदा ना करे कभी कैद खाना की नौबत आए, हम कैद खाना में भी दुआ कर सकते हैं, हम वीरान जगहों में भी दुआ कर सकते हैं, हम किसी भी हाल में हो हम दुआ कर सकते हैं। दुआ कई दफा लोग की बात ना बात पानी खाने से ताली से कैसे है तो जेठ से बेचारे जेठ से दुआ करने सन ना को कितना को पानी से, हाँ पहाड़ पर पूरी रात दुआ की है जी। कई जगहों पर हम दुआ का बहाना दूसरी चीजों का लगाकर दुआ का बहाना, हम इस वजह से नहीं, हम इस वजह से नहीं। याद रखें अपनी जिंदगियों से ये बहानेबाजी निकाल दें। हमने किसी भी हाल में है, हमने हर हाल में दुआ करनी है, और जगह मैटर नहीं करती, आप किसी भी जगह दुआ कर सकते हैं। आमीन। लेकिन चर्च में आना, कलीसिया में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये खुदावन का, हम कलीसिया खुदावन का क्या है, बदन है। हम सब एक है, एक जगह पर इकट्ठा होना जरूरी है। लिखा है जमा होने से बास ना, लिखा है मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, जवानों को इकट्ठा करो। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं। जो लोग दुआ नहीं करते, किसी भी तरह का बहाना लगा लेते हैं, आज से खुदावंद के हुजूर तौबा करें, माफी मांगें, और जिस भी हाल में है रात सोने से पहले दुआ करें, सुबह उठने के बाद फौरन पहला काम दुआ करें, खुदावंद का नाम लें, और जो काम करें दुआ के साथ करें, खुदा की फेवर आपके साथ होगी। आइए हम सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। मैं चाहूंगा भाई अनवर सामने आएंगे और उनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।